sir? हाँ जी 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 Sir. Okay. जी Uh, Good afternoon, a very good afternoon to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mahanti sir, Dr. Mahesh Chandra sir, हमारे मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दिलीप जानी सर, डॉक्टर एम बी महादिक सर, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर, डॉक्टर आनंद सर और हमारे सभी रिस्पेक्टेड आईएचएफ फैमिली मेंबर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर जागृति जानी मैम ने एक केस प्रेजेंट किया है और इस केस को प्रेजेंट करने का जो मकसद है मैम का वो यही है कि जो हमारी ब्रेड एंड बटर रेमेडीज हैं उनके साथ भी हम पैथोलॉजिकल केसेस को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से मैम का वेलकम करता हूं। वेलकम मैम, अ वेरी गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon, sir. जी, तो स्टार्ट करते हैं मैम। आज की बीसी ओवर टू यू। Okay, sir. So, sir, thank you very much for giving me an opportunity to present my case here. And sir, I'm my sincere gratitude to Dr. Hanuman sir, Dr. Milind Rao sir, Dr. Mohanty sir, and Dr. ML Saigal sir. I'm from HHF. Basically, I've learned this method from them. So I'm very much thankful to all my HHF teachers, and my heartfelt thanks to Dr. Hemlata Joel, who introduced me to this HHF method. Okay. So I'm also thankful to all IHF family mentors, Dr. Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. Praveen sir, Dr. Shinde sir, Dr. Mahadik sir. तो विल स्टार्ट विद द केस टुडे। तो पहले मैं आपको ये केस मेरा नरेट करूंगी। तो हाँ, जैसे सर ने बताया, ये केस नरेट करने का, प्रेजेंट करने का सोल एम यही है कि हम लोग देखते हैं ना कि अरे ये पेशेंट का पैथोलॉजी बहुत ग्रेव है या इट इज अ इन एंड आउट सर्जिकल डिसऑर्डर, तो हम लोग कैसे होम्योपैथी से ठीक करेंगे। लेकिन फिर ऐसा डरने की जरूरत नहीं होती है। और फिर हम लोग सेमिनार में अक्सर जाते हैं तो हम लोग को रेयर रेमेडीज सिखाते हैं, नई नई रेमेडीज सिखाते हैं जिसके बारे में हमको कुछ पता नहीं होता है। तो हम लोग सब डर जाते हैं कि अरे बाप रे, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। लेकिन ऐसा डरने की भी कोई बात नहीं है। आप जो भी आपको आता है वो सही है। हर एक केस ट्रीट करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको रेयर रेमेडी की जरूरत पड़े। जो आप पहले आप डेली ब्रेड एंड बटर रेमेडीज सीखिए, उसमें आप मास्टरी पाइए, फिर आप धीरे धीरे करके आगे जाइए। ठीक है। तो ये जो लेडी आई थी वो शी वॉज रिफर्ड टू मी बाय अनदर पेशेंट ऑफ माइंड हु इज ये पेशेंट का देवरानी। ओके, शी वॉज न्यूली मैरिड to this family. So I'll just read out the case first. A 28 years old married female was referred to me by her co-sister, means Devrani, who was treated by me earlier. Now she called me up in the morning asking if homeopathy can cure fibroids. So I said yes, and she took an appointment for the next day morning. And to my utter surprise, she came in the evening of the same day to my clinic. And she reached there 15 minutes before my consulting time. And so I could feel the desperation in her. And then the case started. So she said she's married since 4 years, and now she's eager to plan a baby. Means she got married when she was 24 years old. And then she went for sonography of the pelvis. And then she found that there are multiple fibroids in the uterus. The maximum size of the fibroid is 2 centimeter. और फिर छोटे छोटे, then you know the sizes are of different size. The fibroids are of different sizes, and there are multiple smaller seedlings. तो गायनेकोलॉजिस्ट ने बोला कि आपकी प्रेगनेंसी में जैसे यूट्रस ग्रो करेंगे वैसे फाइब्रॉइड्स भी चांसेस है कि दे विल ग्रो। और कितने सारे फाइब्रॉइड्स हैं, हम लोग कितने को देखेंगे। So it is better you go for in future you'll have to go for total hysterectomy. And right now if you want to have a baby, then you go for either surrogacy or you go for adoption. So she was in tears कि भाई अभी क्या करने का। And you know the family is highly conservative. तो पहले बोला कि नहीं, आप खुद नॉर्मल ट्राई कीजिए।
फिर क्या हुआ, so then I started taking the case. She was accompanied by her Devrani, so I requested her to wait outside. So patient is Gujarati speaking. She stays in a joint family which comprises of her parents-in-law, her younger brother, her younger sister-in-law meaning Nanand, then ye Devar or Devrani, and then her husband. Okay. And while I was taking the preliminary data, she told me, so I asked her, tell me your full name. तो उसने अपना नाम कैसे बोला है, जैसे समझो उसका नाम है प्रतिभा, राइट? सो प्रतिभा, हर हस्बैंड्स नेम इज देवेंद्र, देन द फादर इन लॉज नेम, जनरली हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिभा देवेंद्र पटेल, दिस इज एन इमेजिनरी नेम, ओके? सो प्रतिभा देवेंद्र पटेल, वो फुल नेम हो गया ना? तो ये बंदी ने अपना नाम कैसे बताया, प्रतिभा देवेंद्र रामजी पटेल. So Ramji is her father-in-law's name. So nobody says about the father-in-law in the first full name, right? So I was a bit surprised कि ये क्या हो रहा है. And while talking about her father-in-law, no, her eyes just blinked and she says, "Oh, how can I forget him?" So I noticed यहाँ पे कुछ fishy है. But then the case proceeded further and she was giving me all the information very spontaneously. So but natural, because she was very much eager to get herself treated. So वो बोले जा रही थी, तो I didn't interrupt her, and the case proceeded further. Now, so they are at her maiden place, मतलब उसके पापा के घर पे. They are 3 siblings. तो एक बड़ा भाई है, एक छोटी बहन है, and her mom would remain very sick. She had severe lumbago, backache. So she was confined to the bed during the major part of this patient's school days. So patient had to look after cooking and other household chores, which she did very well. So and she didn't think much about her career. And when later, then after her graduation was completed, she got a very good proposal, and then she got married. अभी वो ससुराल में आई, तो ऐसा हुआ कि then later on उसकी फैमिली में ऐसा चला कि उसकी जो छोटी बहन है, so but natural this patient was doing all the work. तो छोटी बहन को काफी अच्छा टाइम मिला था to flourish in her academics and in her career. So she became a makeup artist, and then she's now working with a very well-known TV serial production house, and she's doing very well in her career. And अभी अपना patient भी है ना, she got married to a very rich family. So they had a flourishing family business. So her husband, her father-in-law, and her brother-in-law, they all were in the same business. So a year after her marriage, she decided कि अभी मुझे कुछ करना है अपने लिए. So then she thought कि हाँ, let me have a career of my own, let me try something. और फिर धीरे धीरे करके ना उसके दिमाग में आया कि चलो let me do yoga. So she learned, she did a yoga teachers training course from a reputed institute in Mumbai, and then she was blessed to have a flexible body. So she mastered the yogasanas very soon, and she was very confident at it. So she started. So after her teachers training course was over, she started taking classes. And first they had a very big house. तो क्या था कि 2 बाजू बाजू में फ्लैट होते हैं ना, बड़े बड़े 2 BHK के, तो वो कंबाइन किया हुआ था उनका हाउस. तो उन लोग के पास एक रूम खाली पड़ा था. तो शी डिसाइडेड कि चलो मैं एक रूम में आई कैन हैव माय योगा क्लासेस. तो वो सब उसने अपना एडवर्टाइज किया था और सब लोग आ रहे थे योगा क्लासेस के लिए. शी वाज डूइंग वेल, शी वाज वेरी हैप्पी विद इट. लेकिन यहाँ पे ऐसा था कि एंड शी वाज एंजॉयिंग इट, और शी वांटेड टू टीच, बट उसका अंदर से ना ये डिजायर हमेशा रहता था कि आई वांट टू टीच इन अ बिगर क्लासरूम. और फिर आई वांटेड टू शी वांटेड टू मेक हर ओन योगा सीडीज. जैसे शिल्पा शेट्टी की योगा सीडी अवेलेबल है, बाकी बहुत सारे सेलिब्रिटीज की अवेलेबल है ना, वैसे उसको बोलना था मुझे भी मेरा योगा सीडी बनाने का. एंड देन शी वांटेड टू एक्सपैंड हर प्रोफेशन ऑन अ मेजर स्केल. तो शी ऑल्सो लर्न डिफरेंट फिटनेस टेक्निक्स, लाइक सिर्फ वो अपने ही इंस्टीट्यूट के योगा से अपने आप को सीमित नहीं रखा. उसने पावर योगा सीखा, उसने जुम्बा सीखा, वो जिम में भी जाके ना वहाँ के भी सब सीख रही थी कि आई कैन टीच एज मच एज आई कैन टीच टू माई स्टूडेंट्स.
And she got up from her chair and she nicely showed me her tummy कि बोलो देखो डॉक्टर मैं ना ये सब कुछ कर रही हूँ ना तो इसके कारण ना look at me मेरा tummy ना अभी भी I still have a very fit body and I'm very slim and trim abs. And so she was very proud while flaunting her abs, and she was very happy. And she definitely had a big dream in her eyes. So this is her professional front she wanted to do. Now if we look at her family front, तो family में ऐसा था कि the family where she was married, it was a very conservative Gujarati family, wherein her mother-in-law was a typical homemaker, uh, who wanted her also to be a typical homemaker. And वो लोग का ऐसे सोचता कि अभी we are rich enough, हम लोगों को क्या जरूरत है कोई पैसा कमाए, बहू पैसा कमाए, तो आप भी क्यों इतना सब कुछ कर रहे हो, सिर्फ आपकी हॉबी के लिए रखो, आप सीखो, आप हेल्दी रहो. So they were not very much keen that she should have her own business or her own career as such. But our patient was different. So और ऐसा भी था फैमिली में कि दो दे वर वेरी रिच, थोड़ा उनका ये पेशेंट ने ऐसा बोला कि दे आर वेरी माइजरली पीपल, क्योंकि जब भी मेड एब्सेंट होती है तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग द रिप्लेसमेंट्स, दूसरी मेड रखने के बजाय दे एक्सपेक्टेड आर पेशेंट टू डू स्वीपिंग एंड मॉपिंग द फुल बिग हाउस. तो उसने बोला कि इमेजिन डॉक्टर हम लोगों का 2 BHK के 2 फ्लैट इकट्ठे हैं, तो मुझे सुबह शाम दोनों टाइम स्वीपिंग करने का, मॉपिंग करने का पूरे घर में, एंड बाकी के काम तो रहते ही है, मीन्स डूइंग द डिशेज एंड वॉशिंग द क्लोथ एटसेट्रा. लेकिन लाइक और मैं है ना all everything I'm doing it alone, all alone. My mother-in-law doesn't help me. So she was very angry with them. And so she would complain to her hubby very often कि ये आप लोग कैसे है, you people are earning in lakhs, लेकिन आप लोग ना इतना spend भी नहीं करते हो. And but the father-in-law was very firm. So he said no, nothing doing, पहले घर का काम करो फिर आप आपका प्रोफेशन देखो. So and her husband being in the same business, and actually he was also dependent on his father financially, so he didn't have much say in the matter. And so her mother-in-law, in turn mother-in-law started threatening her कि अगर तू ज्यादा आवाज करेगी ना, ज्यादा कुछ ऐसा बोलेगी ना, तो मैं तेरे योगा क्लास जो अपने घर में चल रहे हैं ना वो भी बंद कर. अभी घर तो इन लॉज का ही था मतलब. तो she had to keep mum, but she internally she was not very happy. तो वो है ना गुस्सा करती ही रहती थी अपने हस्बैंड के साथ, उसका नहीं बनता था ज्यादा. इवन उसके मदर इन लॉ के साथ भी ना बहुत कुछ तू मैं चलती रहती थी. एंड so patient would remain very angry from within. Often there were clashes between she and her mother-in-law, also with her nanand also, जो कुंवारी थी वो. And so she didn't get along well with her. Now her newly married Devrani also joined, and she also had a वो भी मतलब though she was from Mumbai, but she was not very keen at having a professional. So वो भी घर बैठ के खाओ पियो मजा करो, and looked after the daily chores better than her. So mother-in-law often compared both of them, and she started favoring the younger one. So our patient got all the more angry, and शायद उसकी ही वजह से there was lots of anger within her and the frustration, which at times it used to come out. लेकिन there was hardly anything, she had to keep mum at times what to do. तो फ्रेंड्स इसीलिए शायद ना उसका ये पैथोलॉजी भी इतना शायद बढ़ गया रहेगा. तो फ्रेंड्स दिस इज द केस. और आपने जो मुझे, हाँ, तो मैंने जो दवाई शुरू किया ना, तो it was like first this is a case, the first time I took the case was in February 2015. और शुरुआत की ना after 3 months the sonography was repeated. तो उसमें आया कि it is the fibroid started regressing in size, and then in December I got a news that she is pregnant. So that is around 10 months. मैंने यहाँ 8 months लिखा है, but actually it is 10 months. So then the pregnancy went uneventful, and she delivered a healthy baby girl at full term normal delivery. It was a full term normal delivery.
So, and then, you know, after 3 years, she delivered, she was pregnant again. And then the second also is a full-term normal delivery. And now also, you know, she sends her other relatives to me. And she is fit and fine. उसका यूट्रस भी सही चल रहा है. मतलब कुछ मुझे उसका ऐसा कुछ न्यूज नहीं है. तो फ्रेंड्स, दिस इज अ केस कि अगर मैं पहले डर जाती थी कि अरे ये तो मल्टीपल फाइब्रॉइड्स, हाउ एम आई गोइंग टू विथ इनफर्टिलिटी, कैसे ठीक होता था. लेकिन इफ वी, एंड इट्स अ डेली ब्रेड बटर रेमेडी, लाइक मेनी ऑफ यू हैव क्रैक्ड द केस. तो फ्रेंड्स, अभी आप आपके ओपिनियन बताइए. हेलो. Good afternoon, ma'am. या गुड आफ्टरनून. बताइए मैम. Ma'am, yeah, feel wise, I'll go with Falcon P, but totality wise, I'll go by Lachesis because this patient looked like very communicative. She is quick to act. जैसे उसे पता चला कि उसके reports ऐसे है, तो उसने directly, well, with like impression, she came to you and she didn't had a second thought. And then उसे like you know like जो भी उसका आपने अभी narrate किया, there was like anger suppressed. And she is very highly ambitious and again she is very coquettish because she showed her body, as you said, ki she flaunt her, and she was very openly, she was like narrating everything. And जैसे भी आपने father in law का नाम जैसे आपने कहा, तो she had that like cunning or fishy, I don't know, मतलब fishy, you find something fishy. She openly and boldly expressed her frustration or anger कि yes, how can I forget him. So maybe she must be revengeful or कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए होंगे जो उसे याद दिलाता होगा कि वो बेटा उनका है. एंड जो भी है वो अपने हस्बैंड से सब एक्सप्रेस करती थी, बिकॉज मोस्ट जनरली जो लेकेसिस पेशेंट्स होते हैं वो अपनी जो फ्रस्ट्रेशन होते हैं वो अपने हस्बैंड से शेयर करते हैं. सो या मैम, मुझे ये पेशेंट लेकेसिस ज्यादा लग रही है. ओके, ठीक है. तो इट्स अ वेरी गुड डीडी. हाँ, फाल्कोपी और लेकेसिस. फाल्कोपी आपने इस तरह गया कि यहाँ पे इतना डोमिनेशन है. और लेकेसिस इसलिए गए रहेंगे कि because she's expressive and she's communicative. Falcon P, मैम, because she is highly ambitious and IPR की वजह से वो stuck up feel कर रही है. और because Falcon P is a bird and like they are highly ambitious, तो उसे वो घर घर की कहानी में फंस के नहीं रहना है. So I thought of लेकिन Falcon P. मैम देखिए, फाल्कोपी में ऐसा है ना, देयर इज एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन. देयर आर, तो उसमें है ना, लेकिन ये पेशेंट है ना, डोमिनेशन हुआ या नहीं रहेगा, उसने अपना कारोबार चालू रखा है. हाँ, नहीं तो टिपिकल गुजराती फैमिली में क्या होता है, शादी के बाद इतना रिच फैमिली है, क्या जरूरत है तुमको कुछ करने की. लेकिन इसने बोला नहीं, मुझे करना है. तो शी कंप्लीटेड अ टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स. हाँ, शी बिकेम अ योगा टीचर. और उसने शी वाज अपने आप को वहां पे स्टॉप नहीं किया. शी स्टार्टेड लर्निंग द अदर मोडालिटीज ऑफ ऑल्टरनेटिव हीलिंग, लाइक वो जुम्बा कर रही है वो. तो कहीं पे ना उसने अपने आप को स्टॉप नहीं किया है. और यहाँ पे भी है ना, शी इज ओनली थ्रेटेंड कि अगर तू ज्यादा आवाज उठाएगी ना तो तेरा सब कुछ मैं बंद करवा दूंगी. तो मे बी दिस लेडी इज सो मच वोकल अबाउट हर थिंग्स कि सामने वाले को उसको बोलना पड़ता है, नहीं भाई तू कर, तू मैं बंद करवाऊंगा. मतलब इसने ना अपने आप को रोका नहीं है, वो कर रही है, कर रही है, कर रही है. और देखो, और उसको आगे करना है, दैट इज हर इश्यू. उसको अगर वो इसमें ही ठीक होगी ना, खुश रहती ना, तो अलग बात थी कि चलो थैंक गॉड मैं इतना तो अच्छे से कर रही हूँ. लेकिन इसका इश्यू क्या है कि उसको आगे भी करना है. उसको अभी इतने छोटे रूम में उसको योगा क्लास नहीं करने हैं, अभी उसको बड़े क्लास में करने हैं, जहाँ पे ना मैंने सॉरी लिखा नहीं है, जहाँ पे ना वो माइक से बोलती है. वो उसने ऐसा बोला था, मैं माइक से सबको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ. मतलब वो क्लास कितना बड़ा होगा, ठीक है. और उसको अपना वीडियो सीडी भी बनाना है योगा क्लास का. तो इसका पेशेंट का है ना, जो मेन कंसर्न है ना, वो ये है कि उसको शी इज नॉट हैप्पी विथ हर करंट. शी वांट्स टू ग्रो इन हर प्रोफेशनल लाइफ. और वहां पे शी इज नॉट एबल टू सी दैट. और घर का काम आ रहा है ऊपर, ठीक है. ओके. तो दैट इज द इश्यू. फाल्को पी ना चुप करके बैठ जाता था
और अल्टीमेटली ना फाल्कोपी कभी पैथोलॉजी में जाता था जब भी है ना वो इतना अपने आप को दबा देता था कि एक स्टेज आता था जब भी शी वुड बी कंटेम्पचुअस अबाउट हरसेल्फ कि अरे यार वो अपने आप को नीचा देखते था, तो फाल्कोपी में ये आता था, ठीक है, पैथोलॉजी डेवलप होता है। और दूसरा ना, सी दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाल्कोपी दैट आई एम शेयरिंग विथ यू, मे बी आवर सीनियर्स कैन टेल अस बेटर। और दूसरा है ना मैम ऐसा है कि लैकेसीज होता ना, तो लैकेसीज है ना आउट एंड आउट जो एनिमल रेमेडी है ना अपना, तो एनिमल थीम उसमें आता था। एनिमल थीम क्या आता था कि कुछ कंपटीशन आता था, मेरी देवरानी ऐसी है, मैं ऐसी हूँ। पर यहाँ पे सिर्फ ऐसा ही थीम आया कि नहीं, अभी वो तो टोटली घरेलू फीमेल है, तो बट नेचुरल, शी इज गुड एट हर हाउस होल्ड वर्क, तो यहाँ पे क्लैशेस होते हैं ना। ओके मैम, तो लेकेसिस और फाल्कोपी ना आई विल, दूसरे कोई एनिमल थीम नहीं आए हैं कहीं पे भी, Okay. जेलेसी का इतना नहीं आया, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं आया, वांटेड टू लुक गुड। सॉरी यहाँ पे लाइट चला गया है, हाँ नहीं आ गया लाइट, चलो हाँ ओके हाँ, तो ये सब कुछ है ना नहीं हुआ, समझा। Okay, तो जो ma'am. एनिमल थीम हम लोग बोलते हैं ना, कॉम्पिटिटिवनेस, जेलेसी, वांटिंग टू लुक अट्रैक्टिव, फिर विक्टिम एग्रेसर फीलिंग भी बोलते हैं ना एनिमल का जो मेन थीम है, तो यहाँ पे ना वो अपने आप को विक्टिम नहीं बोल रही है, वो ऐसा ही बोल रही है कि उसका कंसर्न यही है कि मुझे एक्सपैंड करना है मेरे बिजनेस में और कहीं पे नहीं हो रहा है। ओके मैम, Thank you, ma'am. या ओके डियर, गुड हेलो मैम। यू पार्टिसिपेटेड। हाँ पूर्णिमा जी हेलो। बोलिए। हाँ मैम, मीन्स दैट मीन्स कि इन स्पाइट ऑफ दैट मच डोमिनेशन बाय आईपीआर एंड कहीं ना कहीं वो अपना एंगर भी सप्रेस कर रही है, स्टिल शी इज एम्प्लॉइंग एवरी पॉसिबल मीन टू ग्रो इन हर करियर, है ना। तो वहां से लाइकोपोडियम भी आता है डीडी में, हो सकता है। नेक्स्ट वॉमिका मेरे को इतना नहीं लग रहा है, बिकॉज नेक्स्ट वॉमिका शायद बच्चे के लिए इतनी डेस्परेट पता नहीं रहेगी कि नहीं रहेगी, नो आइडिया, थोड़ा आप बताइए। अच्छा देखो पूर्णिमा जी, ऐसा है कि लाइकोपोडियम होता ना तो उसको है ना मालूम होता है उसके आईपीआर को ना कैसे हाथ में रखने का। शी वुड हैव फ्लैटर्ड हर मदर इन लॉ लाइक एनीथिंग। तो है ना लाइकोपोडियम इज इन एम्बिशन इंक्रीज एम्प्लॉइज वेज एंड मीन्स पॉसिबल। तो वो है ना अपनी मदर इन लॉ को ना बराबर बटरिंग करके मस्का मार के ना हाथ में रखती थी, और अपना खुद का उसने ना कुछ और एक्सपैंड करने का कर लिया होता था। ठीक है मैम, लेकिन तो यहाँ मैम पे फिर तो तो है ना, नेक्स्ट वॉमिका ही रह जाता है। गुड चॉइस, गुड चॉइस। हाँ लेट अस सी दूसरे लोग हाँ जी, और क्या ओपिनियन आते हैं। हाँ थैंक यू फॉर राइट मैम, पार्टिसिपेशन थैंक यू मैम। पूर्णिमा। ओके हेलो मैम। या हेलो। हाँ मैम, इस केस को देखने के बाद ऐसा लगा कि इसको एम्बिशन तो बहुत ज्यादा है। तो जो एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस, एम्बिशन इंक्रीज, कम्युनिकेटिव, कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंट, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, सेल्फिशनेस एंड यील्डिंग, ऐसा रूब्रिक लेने के बाद फॉस्फोरस आ रहा है, और सेकेंड उल्मस सी ऐसे करके रेमेडी है। तो मुझे लेकिन फर्स्ट आपने, फॉस्फोरस, मैम हेलो, आपने कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों लिया? क्योंकि कैसा हो रहा है उसको, मतलब जो सांस बोल रही है, डोमिनेट कर रही है, तो वो कहीं तो उसको रुकना पड़ रहा है ना, तो उसमें शायद उसका उसको। कॉन्फिडेंस कहाँ जाता है? रादर शी इज अ कॉन्फिडेंट लेडी कि उसने वो कोर्स कर लिया, देन इंडिपेंडेंटली शी स्टार्टेड हर ओन क्लासेस। जनरली ना देखो हम लोग भी होम्योपैथी का पास होके आते हैं ना, तो पहले हम लोग भी किसी के अंडर बैठते हैं, ठीक है, फिर अपना चालू करते हैं, कहीं और ट्रेनिंग लेते हैं। और यहाँ मैडम ने तो क्या किया, उसने सीखा और सीधा अपने क्लासेस चालू कर दिए। शी इज वेरी कॉन्फिडेंट, मैंने लिखा भी है ना कि शी इज वेरी कॉन्फिडेंट इन हर थिंग। ओके, और दूसरा भी आपने एक रूब्रिक लिया ना, वो मुझे जरा, और कौन से रूब्रिक लिए थे मैम आपने? कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ, जस्ट आपको समझा, लेकिन मैम ये रूब्रिक क्यों नहीं आएगा यहाँ पे? यस मैम, क्लियर हो गया। ओके हाँ ओके मैम। फिर मैम और ऐसा लगा कि वो मतलब जो फादर इन लॉ का नाम ले रही थी ना,
तो कहीं तो ये मतलब उसको ये हिपोक्रेसी लगा कि उनके नाम से आगे बढ़ रही है सपोर्ट लेके ऐसे। और उसके बाद का सेल्फिशनेस मोटो लगा, क्योंकि अभी खुद मैं का ही कैसे देख यहाँ रही पे है। आई। हाँ, मैं कैसे यहाँ पे आई तो माँ बीमार थी, उसका एक बार तो बोलना था ना। तो यहाँ पे भी किसका किसका ही मतलब किसका भी बात नहीं कर रही। इसीलिए मुझे ऐसे लगा ये फॉस्फोरस डीडी पल्सेटिला ऐसे लग रहा था। ओके और एक मैम, रूबी फॉस्फोरस है। नहीं है मैम ये, क्योंकि ओके फॉस्फोरस मैम। बंदा ना मस्त जोवियल होता ना, मतलब फैमिली में ना जोवियल एटमॉस्फेयर बनाता ना, फ्रेंडली पर्सन। यहाँ पे ना फैमिली में क्या एटमॉस्फेयर बना गया है, देयर आर फ्रीक्वेंट क्लैशेस बिटवीन शी एंड हर मदर इन लॉ, वो और उसकी ननन के खिलाफ। और हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी है ना ऐसा है कि शी इज कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग, वो जो नेगिंग वाइफ, नेगिंग नहीं बोल सकते, कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग हस्बैंड को कि देखो तुम्हारी मम्मी ऐसा करती है, समझा? तो ये जो आईपीआर है ना, हेलो, मैम। या हाँ सुनीता जी, हेलो मैम। हाँ जी, हाँ सुनीता जी, हेलो, और कोई हेलो कुछ मैम। बोलना चाहेगा? जी मैम। हाँ। मैम ये इसके वर्क एम्बिशियस तो है, साथ में इसको डिवीजन हिंडर्ड एट वर्क में जा रही है पूरा, बट वो जितनी आर्डेंट है और कॉन्फिडेंट है तो नक्सवामिका की तरफ ज्यादा जा रही है, बट वो सप्रेस कर रही है ना, नक्सवामिका इतना सप्रेशन में नहीं जाएगी। तो थोड़ा सा ये लग रहा है कि अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने में वो हस्बैंड को बोल रही है, सीधा अटैक करके, जैसे नक्सवामिका सामने सीधी बात करेगा ना, तो मुझे नक्सवामिका और इग्निशिया में दोनों में थोड़ा सा ये हो रहा है। चाइना तो रूल आउट हो गया क्योंकि वो सिर्फ वर्क का नहीं है उसको, ओवरऑल। अच्छा, वेरी गुड। हाँ सीमा जी, आपने बहुत अच्छे रूब्रिक्स लिए हैं। एंड देखो ऐसा है कि आपने पहले बोला ना हाइंडर्ड एट वर्क डिल्यूजन, तो शी इज हाइंडर्ड में ऐसा होता है ना कि हमारा काम चालू होता है लेकिन फिर थोड़ा स्लो हो जाता है। हम लोग जो हमारी स्पीड से काम कर रहे हैं ना आगे, जैसे यस। पेन है, हाथ में पेन है और मुझे लिखना है, तो कैसे भी करके मैं लिख लेती हूँ, लेकिन फिर स्लो स्लो लिखा जाता है या हैंडराइटिंग बिगड़ जाते हैं। मतलब काम चालू होता है, जी। ठीक है। हाँ, अभी यहाँ पे ना उसका काम तो चालू ही है अभी एट प्रेजेंट, वो जो कर रही है ना काम, एंड शी इज वेरी हैप्पी बस डूइंग इट। विस्तार नहीं हो पा रहा है, मतलब हाँ, उसको और ग्रो उसको जो करना है, बट एक्सपैंड वो नहीं, होना है, हाँ, वो नहीं हो वो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो यस मैम। इसका इश्यू है, दैट इज द कंसर्न। तो वो So, हाइंडर्ड वाला रूब्रिक रूल आउट हो गया, ठीक है। फिर दूसरा आपने कौन सा बोला? इग्नेशिया। ambitious. हाँ मैम, फिर अब इग्निट। नक्सोमिका इग्नेशिया पे है ना। हम्म, यस मैम। तो देखो नक्सोमिका का सही बोला कि उसका एम्बिशन इंक्रीज है, ठीक है। लेकिन है ना, हम लोग बोलते हैं ना कि इसलिए मैंने बोला, क्योंकि जस्ट मैंने इसलिए लिखा है कि वो अपना एंगर दबाया है उसके अंदर, लेकिन उसने अपना एंगर इतना भी नहीं दबाया है। जहां पे भी चांस आता है ना, मदर इन लॉ के साथ उसका तूतू में हो जाता है, देयर आर फ्रीक्वेंट आर्ग्यूमेंट्स। ओके। और यस मैम। फिर नहीं तो हस्बैंड के ऊपर होता है। तो और दूसरा इग्नेशिया, इग्नेशिया होती ना तो अपने फैमिली की इतनी बातें पहले ही झटके में मेरे को नहीं बताती ना, वो जो सेंसिटिव टू मॉरल इम्प्रेशन है, एटलीस्ट उसको इतना तो, मतलब शी शुड वो बी लड़की भी थैंकफुल नहीं। ना टू द फैमिली कि वो इतना तो कर सकती है। नहीं तो देखो जनरली क्या होता है, वेल टू डू रिच गुजराती फैमिलीज में ना, या कोई भी फैमिलीज हो, ऐसा माना जाता है कि बहू आई है तो 2015 की बात है, बहू आई है तो अरे आपको क्यों पैसा कमाना है, खाओ पियो मौज करो ना, खाओ पियो ऐश करो। हम्म लेकिन दिस फीमेल शी वांटेड टू मेक अ करियर फॉर हर सेल्फ, तो वो योगा क्लास में गई,
उसने फिर बाकी ये सब कुछ किया। तो मैम आपका इग्निशिया में रूल आउट करूंगी, बट यस वेरी गुड, यू हैव कम टू द राइट रेमेडी एंड इट इज नक्स वॉमिक। ओके, थैंक यू। ओके मैम। तो और किसी को कुछ बोलना है? सब लोगों ने यहाँ पे स्टेफिस एग्रिया बोला है। तो स्टेफिस एग्रिया ना मैं ऐसे रूल आउट करूंगी कि बोला है कि एम्बिशियस है, एंगर सप्रेस्ड है एंड कावर्डाइज, ये सब कुछ करके लिया है। तो यहाँ पे ना ये इसका जो मेन कंसर्न है ना, देखो स्टेफिस एग्रिया का है ना एम्बिशन इंक्रीज्ड है, बट दैट इज फॉर हर फेम, कि सब लोग में देवरानी और मेरे में ना मैं अच्छी लगूं, फॉर हर गुड नेम। और यहाँ पे ना उसका वो इश्यू नहीं था, उसको यही था कि अभी बट नेचुरल सासू माँ देवरानी को ज्यादा भाव दे रही। और यहाँ पे क्योंकि इसका हमेशा तू मैं होता रहता था, तो अभी है तो आई हैड कम टू नक्स वोमिका, सो आई चोज नक्स वोमिका फॉर हर। और मैंने जो तभी रूब्रिक लिए थे ना, एक्चुअली फर्स्ट टाइम मैंने केस लिया ना तो मैं भी घबराई हुई थी कि अरे बाप रे मैं ये केस हाथ में पकड़ूं या ना पकड़ूं, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो जाने दो, केस तो लेने दो, फिर आगे देखते हैं। तो जो मैंने रूब्रिक लिए थे ना, तो वो मैंने ये रूब्रिक्स लिए थे, एक मिनट, मैं बाद में ये फिर पोस्ट करती हूँ अपने ग्रुप में। मैंने रूब्रिक्स लिए थे। मैम शी इज इंडिपेंडेंट ऑल्सो, है ना? हाँ मतलब इंडिपेंडेंट इतनी लीडिंग हुई सपोर्ट ना। नहीं है फैमिली से, फिर भी अकेले वो सब उसने किया जो उसको करना सिंगल था। हैंडेड वो फाइट करती है फैमिली से। हाँ लेकिन जी। ये इंडिपेंडेंस भी मैंने रिट्रो लिया था। पहले लिया था एम्बिशन इंक्रीज्ड। ओके, क्योंकि अभी उसको शी वांट्स टू मेक अ बिग इन हर ओन करियर, देन शी वाज वेरी कॉन्फिडेंट दैट शी कैन डू इट। उसको किसी का हेल्प की जरूरत नहीं थी। देन शी वाज वेरी आर्डेंट अपने आप में, उसने शी वाज वेरी पैशनेट टुवर्ड्स हर करियर एंड शी ऑलवेज वांटेड, I could see that dream in her eyes. And then बोस्ट करती है ना अपने आप को, देखो मैं इसलिए इतना अच्छा करती हूँ तो अभी मेरे एब्स देखो, आपके एब्स मेरे कितने अच्छे हैं। और तो वहां पे मैंने बोस्टिंग लिया था। सो यू नो आई मैंने रडार से रेपर्टराइज किया, रडार ओपस से, और आई केम टू 4 ड्रग्स, नक्स वोमिका, प्लेटिना, सल्फर एंड लेकेस। तो इसमें ना प्लेटिना मैंने रूल आउट किया कि इसका ना इश्यू ये नहीं है कि ईगो है, या प्लेटिना जो है वो हमारे ये मिनरल किंगडम में ना गोल्ड किंगडम में है, गोल्ड सीरीज में है। तो उसका इश्यू होता है पावर एंड मैनेजमेंट। तो वहां पे ये नहीं था उसका, इसका मेन इश्यू कंसर्न क्या था, आई वॉन्ट टू ग्रो इन लाइफ, एम्बिशन था उसका मेन इश्यू। फिर और इसका इसका इतना इगोटिज्म या कंटेम्पचुअस कहीं पे भी नहीं लगी थी। ठीक है, फिर सल्फर है, तो सल्फर बंदा है ना, भले ही कुछ भी अपने करियर में करना होता है, बट सल्फर इज वेरी केयरिंग पर्सन। और उसका पैथोलॉजी कभी आता है व्हेन दे स्टार्ट लूजिंग इट, जो उनका डिल्यूजन वेल्थ होता है, एक ऊंचाई होती है, देन दे स्टार्ट थिनिंग, डिल्यूजन इमेशिएटेड, डिल्यूजन थिन। तो वहां पे उसका आता था, यहाँ पे उसका वो सब नहीं था, उसका क्लास तो अच्छा ही चल रहा था। देन लेकेसिस, तो लेकेसिस जैसे मैंने मैडम को बताया कि उसका जो यहाँ पे कुछ एनिमल थिंग भी नहीं मिला मुझे, कि जहाँ पे शी इज कॉम्पिटिंग विद हर देवरानी या शी इज कॉम्पिटिंग विद हर ननन या मदर इन लॉ, ऐसा कुछ नहीं था। उसका सिर्फ यही था कि भाई मुझे मेरा काम करना है और मुझे उसमें आगे बढ़ना है। एंड वेयर, तो इसलिए देन आई थॉट ऑफ नक्स वोमिका फॉर हर एंड द फॉलो अप। अभी उसका है ना, जो एक्चुअली नो राइट नाउ आई एम नॉट इन माई क्लिनिक, आई एम ट्रेवलिंग। तो मेरे पास ना ये केस में अप्रैल में पब्लिश किया है, तो उसका जो सोनोग्राफी के रिपोर्ट्स है ना, वो सब ना मेरे क्लिनिक वाले लैपटॉप में है। तो आई एम रियली सॉरी, मैं ना उसका टेस्टिमोनियल्स में अभी राइट नाउ मैं आपको नहीं बता सकती हूँ प्री एंड पोस्ट ट्रीटमेंट का, बट देन एज सुन एज आई रीच माई क्लिनिक नो, आई विल टेक 15 days टू रीच माई क्लिनिक, तो फिर मैं तभी आपको ये सब सोनोग्राफी के रिपोर्ट्स आई विल शेयर विथ यू। ठीक है, so this is about nux vomica. I hope I have made myself clear. Any question? উঠে ওখান থেকে পরোটা কিনে খেয়ে নেবো, হয়ে গেল। वेरी नाइस। तो वही मैसेज है मेरा कि कोई भी सर्जिकल केस हो, कोई भी पैथोलॉजिकल केस हो,
डोंट बी अफ्रेड, क्योंकि आपके पास उसकी दवाई है, इसीलिए शायद वो केस आपके पास आया है. ओके, so with whatever knowledge you have, just try to solve it. That's all from my side. Anything else? Very nice case, ma'am. Thanks Thank for you. sharing. Yeah, thank you, Purnima ji. मैम गुड आफ्टरनून मैम, रेट्रो में कौन कौन रुपये का है? रेट्रो में कौन कौन से रुब्रिक लिए थे मैंने लिया था, इंडिपेंडेंट लिया था जैसे मैम ने बोला, फिर मैंने यील्डिंग डिस्पोजिशन भी लिया था, फिर मैंने है ना ये रुब्रिक भी लिया था, ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी, क्योंकि वो है ना उसकी मम्मी के घर पे उसने जो अपनी ड्यूटी बजाई ना एज अ डॉटर, मदर वॉज बेड रिडन फॉर सो मेनी ईयर्स, बट देन शी डिड वेल. उसका पूरा स्कूलिंग ना वहां पे ही चला गया मम्मी की देखभाल करने के लिए. ठीक है मैम, मुझे एंगर रुका है ना, एंगर रुक गया, तो एंगर है ना वो अंदर में, उसको तो एक रुब्रिक आना चाहिए ना किसमें, प्रेजेंट स्टेट के लिए. हाँ, प्रेजेंट स्टेट के लिए आना चाहिए, लेकिन तभी है ना मुझे नहीं मिला था एक्चुअली. मैंने ये 4 रूब्रिक लिए ना, एम्बिशन इंक्रीज्ड, और ये एम्बिशन इंक्रीज्ड, बोस्टिंग, कॉन्फिडेंट एंड आर्डेंट. वही उसका तभी मुझे थीम उभर के आया कि उसको आगे कुछ लाइफ में करना है, और उसको कैसे वो करेगी वो ही सोच रही है ना. शी हैड दैट ड्रीम इन हर आई. तो वो एम्बिशन पे मैंने ये नक्सोमी का प्रिस्क्राइब किया है, ना कि एंगर सप्रेस पे. वो सब बाकी का स्टोरी है उसका, जो इतना उभर के सामने नहीं आया था. और उसका ना एंगर इतना सप्रेस भी नहीं है. वो कहीं ना उसकी मदर इन लॉ के साथ उसका तुतू में कर ही लेती है, या उसका हस्बैंड तो है ही. इनफैक्ट मैंने ना दूसरा ये भी रूब्रिक लिया था, एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि शी हैड दैट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हर हस्बैंड कि यू गो एंड फाइट फॉर मी, लाइक लेकिन नहीं, उसका हस्बैंड बेचारा चुप बैठता था प्रोबेबली. तो बिकॉज ही वॉज डिपेंडेंट ऑन हिज फादर, इट वॉज अ फैमिली बिजनेस. So financially also he is dependent on father, so he had to keep mom. तो फिर कहीं ना कहीं ये मैनेज कर लेता है ना सासू माँ और हस्बैंड को. हाँ, बराबर है ना. तो इसीलिए मैंने एलिमेंट्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट लिया था इसके लिए, मतलब रिट्रो में लिया था, नॉट ऐसे. ठीक है. हाँ ठीक है मैम, थैंक यू. थैंक यू जी. और बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? तो आज की वीसी को फिर यहीं पर वाइंड अप करते हैं. डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड डॉक्टर जागृति जानी मैम. बहुत ही बढ़िया केस था मैम. और हमारे जो होम्योपैथ स्टूडेंट्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, उन सभी के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा. और दूसरा, ये जो आपने जैसे आजकल रेयर का बहुत ट्रेंडिंग है, उसके चक्कर में कहीं हम ये मिस्टेक तो नहीं कर रहे, जो हमारी ब्रेड एंड बटर रेमेडीज हैं, जिनके माइंड के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं और उनको बहुत इजीली और सक्सेसफुली हम हमारे क्लिनिक में अप्लाई कर सकते हैं. कहीं वो तो नहीं रह रहा, उनमें तो कहीं हम पीछे नहीं रह जा रहे. ये हमको हमेशा ध्यान में रखना है. जैसा मैम ने बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बोला कि ब्रेड एंड बटर रेमेडीज जो है, हमारी पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन जो है, उनके ऊपर आपका अच्छा होल्ड होना चाहिए, उनकी बहुत अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और एक से एक पैथोलॉजी के केसेस आपके उससे निकलेंगे. तो वंस अगेन हमारी IHF फैमिली की ओर से बहुत बहुत आभार हमें ज्वाइन करने के लिए मैम, अपना समय देने के लिए, और इतना बढ़िया केस प्रेजेंट किया आपने, और बहुत अच्छे से सभी मेडिसिन का डीडी किया. सभी जो क्वेरीज थी उन सबको बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम, थैंक यू. बहुत बढ़िया लेसन है. तो जी, तो थैंक यू. हाँ बोलिए डॉक्टर सुनीता मैम. थैंक यू बोला. और रेयर रेमेडी के चक्कर में आज ना बहुत घूम के वहीं पे अटक गए.
मतलब जी जी मैम एक तो बहुत मैम को थैंक्स देना था, एक तो बहुत बढ़िया लेसन है केस में, जो बेसिक नेचर से अच्छा